Okay, so we shall look at the chapter outcomes of democracy. Yesterday I taught this to hostlers. Okay, hostlers को मैं पढ़ाया था कुछ students थे उसमें से. And in the class 9, we had studied that what is democracy, why democracy. So any of you just tell me a brief definition of what is democracy. Any one of you. Any of you. I can see Vedant, Rishabh, Sumit, and Grishma right now. So कोई भी मुझे बताइए कि डेमोक्रेसी से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. आज ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम, डोंट वरी. एनी आई एम आस्किंग, कोई भी बताइए. ऋषभ, वेदांत, सुमित, विनायक, यश, त्रिशा, युगांक, एनी वन ऑफ यू. Democracy is a system of government in law, policy, leadership, and major understanding are Okay. directly. Okay, great. Democracy is a form of government where we rule our representative in the form of election. इसको जितना भी हम लॉन्ग टाइम इंक्रीज कर सकते हैं. Let us see what is outcomes of democracy. What we are going to study in this chapter. So read the line as it says, democracy is better than dictatorship or other forms of government. Why we are considering that? Why we are referring to democracy is the best form of government? So there are some challenges and some limitation of the democracy which we are going to further. But democracy better क्यों है? हम democracy को better क्यों सोचते हैं? जैसे कि आपने पढ़े होंगे और आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि it promotes equality among citizens. So do you think that any other government can promote equality among citizens? Any of you? Convert more. Let's make this online session as a dialogue, not as a monologue. I ask the question, you answer it. You ask the question, I'll answer it. डेमोक्रेसी किसी भी फॉर्म से बेटर क्यों होती है कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी सिटीजन्स के बीच में. कैसे? एनी ऑफ यू टेल मी. चलिए वीडियो ऑन करते हैं. कोई वीडियो ऑन नहीं किया है. वीडियो ऑन करिए. सब वीडियो ऑन करते हैं. बढ़िया. इसको ऑफलाइन क्लास जैसे ही पढ़ते हैं. वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई इश्यूज नहीं होंगे. गुड वेदांत. मैं भी ऑन कर लेता हूँ. ये और ऑन नहीं कर रहा है. जल्दी ऑन करिए. सो डेमोक्रेसी बेटर है किसी भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से. दो कुछ और भी गवर्नमेंट से जहाँ इक्वलिटी प्रमोट की जाती है. वेदांत, you can turn it off. No, okay. Nobody is turning it on, so let it be. We shall continue. देखते हैं. डेमोक्रेसी सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी प्रमोट करती है. हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को इम्प्रूव करती है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट आल्सो अलाउज द चांस टू करेक्ट मिस्टेक्स. इक्वलिटी प्रमोट कैसे करती है कि वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मींस द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. अब वो आप छोटी सी डेफिनेशन जो अर्लियर क्लासेस में बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल एंड रेगुलेशंस, वो एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. सो लेट मी टेल यू द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री or of the land is called constitution. ठीक. So we have the constitution, we have the democratic constitution. Also the Pakistan has the constitution. In the same way Russia has the constitution, but we have the democratic constitution. And there are some provisions in the constitution which says that which about the equality. From the article 14 to article 18 of the Indian constitution, it talks about the equality. Okay, right to equality, right to job, and all those things. End of untouchability, abolition of titles. Let me share the other screen as well. So just do let me know, is this visible to you? Next screen which I am sharing right now, it will be visible you in the maximum 10 seconds. Can you see this? Yes, sir. Okay.
Just have a read here. Article 14 to Article 18. It is the right to equality article in our Indian Constitution. No citizen should be denied equality before the law or equal protection of law. Article 40. Here state means the government. यहाँ पे state का मतलब government से है. The state shall not discriminate, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. ये जो 5 पैरामीटर मेंशन है, इसके बेस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. Equality of opportunity, Article 16 says for all citizens in the matter of public employment. Government jobs में equality of opportunity मिलेगी. You cannot claim that in the private job. In the private job, it's depend on the employer or appointment to any office under the state. Got it. Article 17 says abolition of untouchability and prohibition of its practice. So Article 17 पहले जो छुआछूत untouchability रहती थी ना, in the same way it has been abolished under this article. And the last equality article is Article 18, which says abolition of titles except military and academic. What do we mean by except military and academic? We give the title of doctor after completing the PhD now. And also in the military, Major General, like some of you must have watched the movie Sam Bahadur. Sam Bahadur sir has been given the rank of the Field Marshal. So that is the title. Earlier, before the independence, people used to have the title like Rai Bahadur, Diwan Bahadur, and all those kind of titles. Thakur sir, such titles were there. So those titles has been abolished. So ये तो अभी हमारा टॉपिक नहीं था, बस for reference I had showed it to you. Let us look. चलिए वापस आते हैं फिर से. So democracy is better than dictatorship or other forms of government. Equality promote करता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है रिजॉल्व होता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी इंप्रूव करते हैं. आप सभी को राइट टू लिव है, ये एक अनकम्प्लीट डेफिनेशन हुई. आप सभी को राइट टू लिव है विद डिग्निटी. Means a rickshaw puller is there and the Mukesh Ambani is there, a billionaire is there. So both have the right to live and both have the right to live with dignity. डिग्निटी के साथ जीना है. कोई राइट टू लिव तो दे दी है पर डिग्निटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी किसी के साथ एनी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जहाँ पे उसकी डिग्निटी हार्म हो रही है, तो नो, ऐसा नहीं होता है. Improves the quality of decision making. Improves the quality of decision making. आप सभी ये बताइए कि डेमोक्रेसी किस डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करती है? Any one of you? और किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रॉपर वे में हो पाती होगी? लाइक आप कभी यूट्यूब में पाकिस्तान की असेंबली के वीडियोस देखते होंगे या एनी अदर कंट्री के जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे डिसीजन मेकिंग. लाइक लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रशिया. द Vladimir Putin is the president of Russia, and he has changed some provision of the constitution of Russia that he would be the president of the Russia by 2035, year 2035. तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, किसी की सुन के करते नहीं है. यू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, शी जिनपिंग. ही इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ, बिलोंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. सो ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में राइट नाउ you know strike is going on, that's why we are having the what online classes. So it is, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी में ही पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अंडर द आर्टिकल 19. थोड़ी देर में देखते हैं आगे. सो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा. अब ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है. इफ इट इज रशिया, यदि ये रशिया होता या चाइना होता या इफ एनी अदर कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो सीधे सीधे आर्मी को ओपन फायर के ऑर्डर्स मिल जाते. ये होता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? You must be watching this on the screen. Democracy, dictatorship, monarchy, autocratic government, socialism and communalism. Spelling mistake हुई last में, socialism and communalism. So socialism and communalism almost similar है. ये दोनों चीजें इक्वलिटी की बात करती हैं, पर यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम है socialism and communalism में. China is a communist country, Russia is also a communist country, and Cuba from the South America is also a communist country. What is the basic problem? It talks about the equality, but there is no representation of the people in the communism or socialism. Only the one people or one family or one person rules the entire government or the country. Like you talk about the North Korea. In the North Korea, they are not taught the history, geography, anything. They don't have the access to the internet.
they are not aware of the world map that any other country exists or not. So they consider the Kim Jong-un and his father as the god. So ये कम्युनिस्ट कंट्री है. रशिया का भी इससे मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है. रशिया का डेवलपमेंट, इंडिया रशिया से आगे इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. And right now we are progressing. China is a communist country. Now you talk about that कि China communist country के आड़ में capitalist country धीरे धीरे बनते जा रहा है because it is allowing the private companies in the China. But here we are not going to discuss that. In this way, the 5 points we looked at, it promotes the equality among citizens, enhances the dignity of the individuals, improves the quality of decision making. Okay, I was showing you the how it can improve the quality of decision making. Again, let me share you the screen. Can you see this? Okay, थोड़ा सा स्लो आएगा पर आएगा. Can you see the 543 seats which I am showing? It must be Yes, visible. sir. Okay, so it is the number of the maximum MP in the Indian Parliament. Okay, so 543. Constitution has the 552, but right now we have the 543. And just before some time, the Honorable Home Minister of India has said that those extra seats from 543 to 552, how many are there? 7 plus 2 means 9. 9 seats has been reserved for the people of the POK, Pakistan Occupied Kashmir. So now we have the 543 constituency. Let us call it constituency. So the people will be elected here and they will represent us. So we will call them representative, and they are known as the MP because they are the member of the parliament. Right now here the people belong to multiple castes, communities, the religion, all those things. Okay, they are sitting there and they have the discussion. But the as you can see the saffron color or orange color in the majority because it is showing the BJP right now. So there are multiple people and they take the decision, and they for right now opposition is forcing the government to withdraw the rule right now which has been imposed, like that motor vehicle act rule. You got that now what I'm talking about? Right now strike is going on because of that. If any driver, any truck driver, any driver strikes any person, he dies, if driver run away, so he will be liable to pay the 10 lakh 7 lakh fine and 10 years of imprisonment. अब कोई भी बाइक वाला रैंडमली जाके किसी कार किसी ट्रक में स्ट्राइक कर लेता है खुद को और उसका फेटल हो जाता है, डेथ हो जाती है. तो ड्राइवर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? बस ट्रक का ड्राइवर यदि नहीं भागेगा तो पीपल विल यूज द मॉब लिंचिंग मेथड. So that's why we have the outrage here right now. But in this way, opposition will sit here, government will sit here, all the parliamentaries will sit here, and they will have the final decision. So ये possible सिर्फ democracy में है. Other countries में एक बार बोल दिए, change नहीं होगा. You talk about the North Korea. North Korea में कुछ fixed hair styles हैं, jeans पहनना होना है, internet भूल जाओ. ऐसी situation है नॉर्थ कोरिया की. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. मैं नोट्स बाद में शेयर कर दूंगा. डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, अभी कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है. इसकी मेथड है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की. अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स. जैसे फ्यू इयर्स अगो गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन इट्स 3 फार्मर बिल्स. जब आप 7th या 8th में रहेंगे, 3 फार्म लॉज आए थे, तो उसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था क्योंकि 1 और 2 इयर्स एजिटेशन चला था पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में. इन द सेम वे अभी अपनी ईयर की स्टार्टिंग थोड़ी काफी अच्छी नहीं रही है, तो ये पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर ले. यदि गवर्नमेंट को लगे ऐसा कि मिस्टेक्स हुई हैं या जो भी है, तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है डेमोक्रेसी में. अभी तक ये क्लियर है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो 5 पॉइंट्स मैंने बोला, इक्वलिटी अमंग सिटीजंस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, improves the quality of decision making, provide methods to resolve conflicts and allow rooms to correct mistakes. ये 5 points के कारण democracy is better than other forms of government. You got that? Any doubt? यदि बुक लेके बैठे होंगे आप तो ओके, नो वरी. हमारा नेक्स्ट है टॉपिक आपके चैप्टर में
विच इज असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम। आउटकम क्या होता है? कोई भी थ्योरी होती है, उसका प्रैक्टिकल करते, फिर भी हम रिजल्ट देखते हैं। तो ये रिजल्ट से हमें पता चलता है कि क्या हमारा एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा कि नहीं। इन द सेम वे डेमोक्रेसी वाज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द कंट्री इन द ईयर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। So our member of the Constituent Assembly decided to have the democratic government and secular country. So देखते हैं इसका आउटकम क्या रहा। इसके पॉलिटिकल आउटकम्स हैं, तीन पैरामीटर में हम इसके आउटकम्स देखेंगे। पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स, सोशल आउटकम। मतलब what were the political changes after 1947 and economic growth and those green revolution thing and social outcomes, जैसे सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए। सो ये 3 पॉइंट्स हैं। मैं पीपीटी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। लेट अस सी पॉलिटिकल आउटकम्स देखते हैं इसके। अकाउंटेबल गवर्नमेंट। The government is accountable for everything what is happening in the country. Government cannot blame anything or anyone. He that earlier there is a joke like that in the India. अब मैं पर्टिकुलर ईयर और किसी गवर्नमेंट का नाम ले लूंगा। कुछ भी अटैक होता था कंट्री में, रॉट्स होते थे, तो अवर पॉलिटिशियन यूज टू से दैट कि ये पाकिस्तानियों का हाथ है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस जोक इन द मूवी ऑल्सो। जब कुछ समझ नहीं आए तो टेररिस्ट को ब्लेम कर दो या पाकिस्तानियों को ब्लेम कर दो, इसमें तो फॉरेन पावर्स का हाथ होगा। तो नाउ इट इज, ये तो ऐसा गवर्नमेंट को बोलना नहीं चाहिए, पर हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। सो ये इससे पॉसिबल है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में। अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव किस वे में कि कोई इश्यूज होगा तो जैसे आई थिंक उत्तराखंड या यूपी में ये जो स्ट्राइक के साथ एंड हो गई है, रात को एक न्यूज आई थी, दैट माइट बी फेक ऑल्सो। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है, गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। थर्ड पॉइंट आई एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ इज द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, वैलिड। गवर्नमेंट कोई भी मेंबर जाके अपने मन से पार्लियामेंट में जाके दे आर नॉट सिटिंग देयर। So we have choose them, we have elected them, and they are representing us. So in this way we can say that government is legitimate. लोगों ने चूज करके उन्हें पार्लियामेंट में भेजा है, अपने मन से उन्होंने खुद वहां पे जाके गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की है, जैसे चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया में, रशिया में, चाइना में होता है। ओके, सो थ्री पॉलिटिकल आउटकम्स हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, आप जो लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं और आई विल सेंड द पीडीएफ फॉर लेटर, एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। थ्री पॉलिटिकल आउटकम्स देखे हमने, इसका और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्रोल देम। ये एक थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, कंट्रोल देम। मैं जो पढ़ के बोल रहा हूँ बाद में आपको मिल जाएगा। हमें राइट टू चूज है, इलेक्शन होता है, आर्टिकल 324 टू 329 इलेक्शन कमीशन का मेंशन है, तो उसमें हमें राइट टू चूज है एंड हम वी कैन वोट। any people, any person above the age of 18 can choose their representative regardless of any caste, religion, gender, whatever. But हाँ, वो जेल में नहीं होना चाहिए एंड वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, मीन्स पागल नहीं होना चाहिए, उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक होना चाहिए, उस उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। तो राइट टू चूज है एंड गवर्नमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिस्कशन का पॉइंट किस वे में हो सकता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल होना है, बुक में मेंशन है या जहां से मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे लिखा हुआ है। You cannot control the government directly, but in the form of protest आप नेक्स्ट अगले 5 ईयर से उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला। आप सोशल मीडिया कैंपेन्स कर सकते हैं और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जो सही डिसीजंस ले। सिटीजंस हैव द राइट एंड द मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे पास राइट्स हैं और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का एग्जामिन कर सके। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये एक डिबेट का डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, पर एज पर द बुक इट इज मेंशन्ड देयर कि हमें जो भी चल रहा है उसको देखने का, वॉच करने का प्रॉपर राइट भी है और सोर्स भी है। जैसे कि अभी पार्लियामेंट अटैक हुआ था जस्ट कुछ दिन पहले, तो वह ही वाज जस्ट अ पर्सन वाचिंग द प्रोसीडिंग्स देयर इन द पार्लियामेंट। आप भी जा सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए, ऊपर गैलरी होती है, वहां पे जाके बैठ सकते हैं, क्या हो रहा है आप सब सुन सकते हैं। जुडिशरी में भी, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप यूट्यूब में क्लिप्स देखते होंगे कि जजेस अपना डिसीजन दे रहे हैं हर चीज पे, तो लोगों को पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। सो इन दिस वे कि क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रही है हम देख पा रहे हैं।
अमित शाह क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, सारी चीजें दिख रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एन इंस्टीट्यूशन लाइक रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओपन पब्लिक डिबेट। इंस्टीट्यूशन मतलब कि आपका इलेक्शन कमीशन को एक इंस्टीट्यूशन हम बोल रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और ओपन पब्लिक डिबेट। जो प्रोटेस्ट है वही काइंड ऑफ ओपन पब्लिक डिबेट है कि बिकॉज वी हैव द लार्ज पॉपुलेशन ना, सो ऑल द 135 and 140 crore people cannot sit together in a place, so they have the debate, they have the all those things in their own places. Somebody mute the your mic please. Okay, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कल्चर होता है, लाइक JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं फेमस नॉर्थ इंडिया की, दे हैव द ह्यूज डिबेट्स होते हैं यहाँ पे, प्रोफेसर वर्सेस स्टूडेंट, सच काइंड ऑफ डिबेट आर कंडक्टेड देयर। ओके, सो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, और हर चीज पे वो डिस्कशन करते हैं। सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में। जैसे कि एनसीईआरटी, थोड़ा एक मैं डिबेटेबल डिस्प्यूटेबल टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी 11th एंड 12th की में, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, तो किसी ने आरटीआई लगाई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब एनसीईआरटी के लिए, इस आरटीआई में कि ये कहाँ से आपको सोर्स मिला, तो एनसीईआरटी का आंसर आया कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इस बात का, तो एनसीईआरटी ने उस चीज को ऐसे लिख दिया। तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये कैसे, पर इसका मिसयूज भी काफी हो रहा है, इससे क्या कहते हैं, ब्लैकमेलिंग काफी बढ़ गई है। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे अकाउंटेबल गवर्नमेंट के। इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ेंगे, फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, इन अ डेमोक्रेसी डिसीजंस आर डिलेड। डेमोक्रेसी को 2 पॉइंट्स में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है, एंड डेमोक्रेसी डिसीजन आर डिलेड। थोड़ा आपको आउटसाइड की कुछ वॉइसेस आएंगी तो इग्नोर दैट। अब एनी ऑफ यू टेल मी कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट कैसी हो सकती है? कौन कौन सुन रहा है मुझे? अद्विक, आरना, आशय, आदित्य, अनविका, गजेंद्र, ग्रीष्मा, जागृति, मेघ, नेहान, प्रणीत, ऋषभ, सक्षम। गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव कैसे हो सकती है डेमोक्रेसी में? आप कोई भी बताइए मुझे, एनी ऑफ यू, कौन बता रहा है? अद्विक, कुड यू टेल? यस सर। ओके, सर गवर्नमेंट थोड़ा टाइम लेती है डिसीजन मेकिंग के लिए, इस टाइप से वो थोड़ा लेस इफेक्टिव हो सकता है। सो ये क्रिटिसाइज की है, हम इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जस्टिफाई भी करने की मीन्स ये गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन, ये लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है और डिसीजन डिलेड होते हैं। इस बात को रॉन्ग कौन प्रूव करेगा? सक्षम, कोई भी बोल सकता है, एनी ऑफ यू, कि डिसीजन डिले होते हैं, तो इसको यू हैव टू प्रूव इट रॉन्ग। अनोखे, यू से। ओके, मैं बोलता हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट साइलेंट प्ले कर रहे हैं। ओके, सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको दूसरी गवर्नमेंट से कंपेयर कर देना है। कंपेयर थोड़ा लेस इफेक्टिव तो होता ही है कि वी हैव टू कंट्रोल द लार्ज पॉपुलेशन, वी हैव टू रूल द लार्ज पॉपुलेशन, we have to make the policies and regulation and scheme for 135 crores of people in India. So we cannot satisfy each and every people or each and every social group or each and every caste group in a single time. कभी कुछ होगा तो कुछ में less effectiveness होगी, पर इसका justification कैसे देंगे? Some people think that democracy produces a less effective government. Other forms of government do not have to think about majority opinions and deliberations, but democracy keeps in mind both. Hence, it cannot be called a less effective government. डेमोक्रेसी में भले एक बार में सबका नहीं होता, पर कभी ना कभी सोचते तो है सबका। यू कैन नॉट थिंक दैट इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की में तो यू जस्ट फॉरगेट इट, यू फॉरगेट इट इन द कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म। वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी की नहीं चलती है, जो सोचेंगे सुप्रीम लीडर और वहां के डिक्टेटर वही चलेगा। सो इस कंपैरिजन में डेमोक्रेसी इज बेटर एंड डेमोक्रेसी इज नॉट अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग, सॉरी टाइम, डिसीजंस आर डिलेड। इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी में डिसीजन डिलेड होते हैं। सो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन।
डिस्कशंस करके, बातें करके सारी चीजें होती है, जो भी होता है पार्लियामेंट में होता है। अभी के सिनेरियो को थोड़ा भूल जाओ। some delay is bound to take place and decision may be both more acceptable and more effective. सो डिले पॉसिबल है कि जो भी मन में आया एक बार में सुबह उठे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, वैसा नहीं होता। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और फिर लोकसभा में होता है, लोकसभा में वो बिल पास होता है, देन इट गोज टू राज्यसभा, देन आफ्टर पासिंग फ्रॉम द राज्यसभा इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर सम टाइम इट इज इम्प्लीमेंटेड। सो इस चीज में टाइम होता है कि 135 करोड़ पॉपुलेशन के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है। सो इट इज नॉट लाइक द स्वीट पुडिंग, हलवा जैसे तो है नहीं कि 2 मिनट में मैगी जैसे बन जाए। सो इट टेक्स टाइम। सो इन दिस वे द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। तो जितना टाइम लगता है उसकी कॉस्ट, जो डिसीजन उसका आउटकम निकलता है, दैट इज बेटर। सो हमने देखे थे अकाउंटेबल गवर्नमेंट के सारे पॉइंट्स वी हैव सीन। एंड एनीवन, हाउ मच टाइम डू वी हैव? वी स्टिल हैव सम टाइम। सो आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। somebody is trying to write here कि ये नहीं करना चाहिए। ओके, नो वरी। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आउटकम्स में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। Responsive government. Responsible and responsive to the needs and expectation of the people. Government responsive है, response भी करती है। Promotes the formation of the public opinion, cares about the public opinion. Public opinion की care करती है, कुछ protest हो रहा है तो सुन लेती है। Democracy is attentive to the needs and demands of the people. लोगों के needs और demand को भी सुनती है। It is expected that a democratic government is largely free from corruption. ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करप्शन से फ्री होती है और सेंसिटिव होती है। कॉन्ट्रडिक्शन, most democracy fell short of election that provide a fair chance to everyone and every decision to public debate. बहुत सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस टाइम टू टाइम नहीं हो पाते, यही ब्लेम किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन से, पब्लिक से, पीपल से शेयर नहीं करती। इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? All one can say is that democracies have had greater success in setting up regular and free election. बाकी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि रेगुलर फ्री इलेक्शन पॉसिबल होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक के पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, अपना टेन्योर 5 इयर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाया। वहां पे मिलिट्री कूप आ जाता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। Thus, it is much better than any non-democratic regime in this respect. तो इसको रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को आप अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करके बेटर प्रूव कर सकते हो डेमोक्रेसी को। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल आउटकम्स का लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। द मेजोरिटी पार्टी और ग्रुप ऑफ पीपल पार्टीज फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो मेजोरिटी सीट्स जीतता है वो उसे इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट मिलता है। whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. जब भी पॉसिबल हो और नेसेसरी हो। सो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में क्या चीज है वो, जब भी पॉसिबल और नेसेसरी, तो हर 5 इयर्स में हमें इलेक्शंस होते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, या वर्किंग अच्छी नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन दी डिक्टेटरशिप कैन बी बेटर फ्रॉम डेमोक्रेसी? Mirth is asking a question. I'll reply later. Just give me some time. डिक्टेटरशिप Yes, का sir. बेटर प्रूव कर रहे हो डेमोक्रेसी से? तो डिक्टेटरशिप इज नॉट बेटर देन डेमोक्रेसी एनीवेयर। डिक्टेटरशिप, अभी आप सीधे बोल दो कि अभी यदि जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की अभी जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, जो बस ड्राइवर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, कोई भी है, ये इंप्लीमेंट ही हो जाए और इसका गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, तो स्ट्राइक कितने दिन चलेगी फिर बताओ? आपका एजुकेशन बंद हो जाएगा, आपका खाना पीना, ग्रोसरी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जाएगी, सारे रिसोर्सेज पहुंच नहीं पाएंगे। सो इट इज काइंड ऑफ अ लॉकडाउन सिचुएशन। यदि गवर्नमेंट हमारी सुनेगी नहीं तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा कि बिकॉज दे हैव द इलेक्शन इन जस्ट दिस ईयर ओनली। सो डिक्टेटरशिप तो बेटर हो ही नहीं सकती ना। यू टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ऑलमोस्ट 30 मिलियन 5 करोड़ सॉरी 50 मिलियन 5 करोड़ पीपल को गैस चैम्बर्स में छोड़ दिया और गैसेस रिलीज कर दिया, मार दिया, मतलब कि उसका टर्म एक नेम है हॉलोकास्ट। सो ये एडोल्फ हिटलर ने किया था और मोस्टली जर्मन के साथ किया था।
जैसे इंडिया में कास्टिज्म था है, और वैसा ही एडोल्फ हिटलर जो ज्यूस हैं, ज्यूस इन हिंदी वी से इट यहूदी, उन लोग को वो सीधे सीधे गंदा खून का बेकार लोग समझता था ज्यूस को, तो सिर्फ एडोल्फ हिटलर को देख के लगता था इन लोगों को मारो। और 97% जो नोबेल प्राइज विनर है वर्ल्ड में साइंटिस्ट, तो दोज आर ज्यूस। एल्बर्ट आइंस्टीन इज ज्यूस। ओपेनहाइमर मूवी आई थी, ही वाज द ज्यूस। फेसबुक का फाउंडर मार्क जकरबर्ग इज ज्यूस। बहुत सारे जो आपने बॉडी बिल्डिंग में एक नाम सुने होंगे किसका, आर्नोल्ड श्वार्जनेगर का, ही इज आल्सो ज्यूस। ये ज्यूस का ज्यूस लोग हैं, मेहनती होते हैं। ओके, सो एडोल्फ हिटलर ने मारा, तो एडोल्फ हिटलर को आप अच्छा बोलेंगे, आप जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का नाम ले ही नहीं सकते। लेना मतलब कि वो गलत समझा जाएगा वहां पे। ठीक, तो ये था एडोल्फ हिटलर। और यही कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर कुछ और बनना चाहता था, पेंटर काइंड ऑफ समथिंग, पर उसको किसी ने फोर्स किया। और एक बार एक प्रिस्ट ने एडोल्फ हिटलर को डूबने से, ड्रॉनिंग से बचा लिया था। तो सबसे बड़ी वो प्रूव हुई बाद में। ठीक, ये है। आप उसका एग्जांपल ले लो, रशिया का। रशिया और यूक्रेन और अभी भी चल रहा है आपके। और रशिया इज अ काइंड ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री। और यूक्रेन में भी जो वहाँ के जेलेंस्की प्रेसिडेंट है, ही वाज अ कॉमेडियन लाइक कपिल शर्मा। सो कपिल शर्मा जैसे कोई यदि देश चलाने मिल जाएगा, तो उनका ईगो हर्ट होगा। ईगो हर्ट के चक्कर में, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1993। तो व्लादिमीर पुतिन बोलता है कि नहीं, मेरे को वही चाहिए। कभी कभी डिक्टेटरशिप जरूरी हो जाती है कुछ सेंस में, हार्ड डिसीजन स्ट्रिक्टनेस के फॉर्म में। लेकिन डिक्टेटरशिप कैन नॉट बी बेटर देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेटर। सबसे पूछ के करना, अब विल के हिसाब से करना, विश के हिसाब से करना। ठीक, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का भी पॉइंट हमने देखे, और देखते हैं जल्दी से, लास्ट 5 मिनट्स मस्ट बी रिमेनिंग। whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all। मतलब इलेक्शन की बात करें, it generates its own support to itself। इट जनरेट्स इट्स ऑन सपोर्ट टू इटसेल्फ। जैसे इंडिया की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में लास्ट में लाइन आती है, इन योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू hereby adopt in it and give ourselves to this constitution। हम खुद ही अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब पीपल की बात कर रहे हैं, हम खुद ही इनेक्ट कर रहे हैं, इसको वैलिड प्रूव कर रहे हैं, हम खुद ही अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बात है कि इट जनरेट्स इट्स ऑन सपोर्ट टू इटसेल्फ। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कुछ देर बाद में। कॉन्ट्रडिक्शन, डेमोक्रेसीज often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population। ये पॉइंट मिल रहा है कि डेमोक्रेसी हमेशा लोगों के नीड्स को फ्रस्ट्रेट करती है और लोगों के डिमांड्स को इग्नोर करती है। क्या ये बात सही हो सकती है क्या? एनीवन? जागृति, नेहा, मेर्थ, अद्वैक और जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, सुमित, यश, माही, गजेंद्र। ओके, कोई बात नहीं। ये इट हैपेंस कि डेमोक्रेसी में कई बार लोगों की डिमांड्स इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि एज आई टॉक्ड अर्लियर कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ एवरीवन इन वन टाइम। सिंगल टाइम में सबके डिमांड्स सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। देयर आर रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन व्हिच कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ क्लीन एंड रिस्पांसिव गवर्नमेंट। करप्शन तो है, इट इज ओके, एंड यू आर वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, एंड वी हैड डिस्कस्ड दिस इन द क्लास अर्लियर कि हाउ द करप्शन आर बीइंग डन। डेमोक्रेसी में बी स्लो, इसका जस्टिफिकेशन सफाई ये है, डेमोक्रेसी में बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन। ये सारी नहीं हो सकती, बट इट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, पीपल ने चूज की है। वो जो पार्लियामेंट में बैठे वो खुद से वहां पे नहीं गए, हमने चूज किए, हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस ऑफ साउथ एशियन डेमोक्रेटिक रिजाइम शो दैट डेमोक्रेसी इज अ सुटेबल गवर्नमेंट। ये तो एक अलग सी लाइन है थोड़ी, इसे हम डिस्कस देखेंगे बाद में। तो आज हमने देखे डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल आउटकम्स हैं इसके, इकोनॉमिक आउटकम्स हैं, सोशल आउटकम्स हैं। पॉलिटिकल आउटकम्स हमने डिटेल में देखे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है, गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। टुमारो वी शैल टॉक अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक आउटकम्स। इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रिडक्शन इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी है। तो any question, any one of you, because we have 3 minutes left only, so next topic start नहीं करते हैं। कुछ डेटा, anything you would like to ask?
No questions? Any data would like to you know? Okay, no issue. So मैं नोट्स आप सभी को सेंड कर दूंगा और आप इसे बुक से भी रीड कर लेना एंड टुमारो वी शैल फिनिश दिस चैप्टर एंड जस्ट शायद हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और मैप वर्क काफी अच्छे से हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास एंड यू वेट फॉर योर नेक्स्ट क्लास बिकॉज यू विल नीड एटलीस्ट 1 or 2 minutes। somebody had messaged me अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब कि जिम्मेदार रिस्पॉन्सिव। कोई भी काम होगा तो आप गवर्नमेंट के कुछ भी कंट्री में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में होगी। जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर या क्लास टीचर, स्कूल में प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम, कहीं पे भी सब अकाउंटेबल होते हैं अपने अपने वर्क के लिए। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। लेजिटिमेट, एक बात, लेजिटिमेट का मतलब है लीगल। जो 543 मेंबर्स हैं वो अपने मन से वहां पे जाके नहीं बैठे हैं। नहीं, people who are mentally unstable can also vote not. Those who, the people who cannot vote are the unstable people and those people who are in the link. ऐसे ऑनलाइन कब तक? ऐसे ऑनलाइन तब तक जब तक कि स्ट्राइक्स एंड नहीं होती और डिसीजंस नहीं आते। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट मी एंड द क्लास राइट नाउ एंड हैव Thank अ you, गुड sir. डे। ओके, रिवाइज करिए, पढ़िए, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड्स भी हैं एंड इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द प्री बोर्ड्स। ओके, एंड ये मीटिंग सारी रिकॉर्ड हुई हैं, सो मैं इसका पूरा आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट सम यूट्यूब वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। अटेंड करिए नेक्स्ट क्लास।